السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درس پر لے اللہم صلی علی سیدنا و سفینا شبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج رمضان المبارک کا 9 روزہ ہو چکا ہے، کل 10 رمضان المبارک ہے۔ آپ حضرات 10 رمضان المبارک اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوئی، اور 10 رمضان المبارک کو اسلام کی پہلی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یوم وصال ہوا تھا، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ نانی تھی، اور سیدہ فاطمہ کی ماں تھی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ساس تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا 10 رمضان المبارک کو یوم وصال ہوا تھا۔ تو آئیے آپ حضرات مفتی سلمان اجہری سے یہ واقعہ سماعت فرما لیں۔ مکہ مکرمہ کی ایک معزز خاتون، بڑی مالدار خاتون تھی حضرت خدیجہ، جن کے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب وہ کسی سے شادی کرنے کے موڈ میں کبھی نہیں تھی، لیکن وہ بڑی مالدار تھیں۔ انہوں نے اپنا مال تجارت کسی کو دے کر کے انویسٹ کروا کر کے تجارت کرواتی تھیں۔ جب ان کو پتہ چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانت دار ہیں، بڑے ہی دیانت دار ہیں، تو اپنا مال ان کو دیا اور کہا کہ تم تجارت کرو اور نفع کما کر کے لے آؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر ملک شام گئے، اور اتنا نفع ہوا اس مال میں۔ واپس جب آ رہے تھے تو حضرت خدیجہ کا ایک غلام میسرہ تھا۔ حضرت خدیجہ نے کہا تھا، میسرہ تم ہمیشہ محمد پر نظر رکھنا، دیکھتے رہنا یہ کیسی کیسی تجارت کرتے ہیں، کتنا نفع کرتے ہیں، اسی لیے نہیں کہ خرد برد ہوگا، اس لیے کہ مدد کے طور پر۔ جب یہ قافلہ واپس مکہ آ رہا تھا، اب پھر ٹرننگ پوائنٹ ہے یہاں پر، حضرت خدیجہ اپنے گھر کے بالا خانے پر بیٹھ کر کے اپنا نفع شدہ قافلہ جو مکہ میں داخل ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ بڑا گھر تھا، بڑا محل تھا۔ جب وہ اوپر سے نظارہ کر رہی تھی، وہیں سے دیکھ کر کے وہ گرویدہ ہو گئی کہ اتنی دور سے دیکھ رہی تھی، قافلہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن چہرہ محمد سب سے زیادہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے، میں نے چاند کو بھی اتنا تیزی سے چمکتے نہیں دیکھا جس طرح ملک شام سے یہ لوٹتا ہوا قافلہ محمد کا چمکتا ہوا چہرہ لے کر آ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں، عجیب حالت تھی، قافلہ تو تجارت کر کے آ رہا ہے، لیکن میں نے دیکھا اس قافلے کے اوپر جو دھوپ کا وقت ہے، اس وقت آسمان کا ایک ٹکڑا، بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بن کر کے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ جس طرف محمد جا رہا ہے اس طرف وہ ٹکڑا بھی چلتا جا رہا ہے۔ آگے پیچھے نہ جانے کون سی مخلوق چل رہی تھی۔ حضرت خدیجہ کا دل یہیں سے بے قرار ہوا۔ ملک شام سے تجارت کر کے واپس آنے کے بعد، جبکہ حضرت خدیجہ کی 2 شادیاں آلریڈی ہو چکی تھی، انتقال ہو چکے ان کے شوہروں کے، 40 سال کی عمر ہو چکی تھی، شادی کرنے کا کوئی خیال نہیں تھا، لیکن حضور پاک کے چہرے پاک کو دیکھنے کے بعد، ان کی خصوصیات دیکھنے کے بعد، نفع لیتے ہی آپ نے پیغام بھیج دیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، کہا کیا آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہیں؟ وہ روح محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گرویدہ خاتون، ان کا پیغام پہنچتے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود سے قبول نہیں کیا، اپنے چچاؤں اور پھوپھیوں کے درمیان اس مسئلے کو رکھا۔ جناب ابو طالب تھے، سارے پھوپھیاں اور چچا بیٹھے، ان کے سامنے رکھا کہ حضرت خدیجہ کے پیغام نکاح آیا ہوا ہے۔ سارے لوگوں نے کہا، تمہیں پتہ ہے خدیجہ پورے مکہ میں طاہرہ کے نام سے جانی جاتی ہیں، سب سے پاکیزہ خاتون۔ عزت تو ایسی تھی کہ ادنا سے ادنا آدمی بھی اور اونچا سے اونچا آدمی بھی حضرت خدیجہ کی طرف چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھتا، ان کی عزت بڑی تھی۔ کہا کہ اگر محمد تمہارے لیے ان کی طرف سے پیغام آیا ہے تو قبول کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب بھیجا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ مکہ میں سب سے شریف خاتون اگر کوئی ہے تو خدیجہ کا نام ہے۔ میرے عزیزو، خاتون شریف کیوں نہ ہوگی؟ اس لیے کہ جس کے پیٹ سے پیدا ہونے والی بیٹی فاطمۃ الزہرا ہو، سیدہ کائنات ہو، تو پھر ماں کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم نے یہ انتخاب فرمایا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نکاح کو دل و جان سے پسند کیا۔ نکاح کی تقریب ہوئی۔ نکاح کی تقریب میں
जनाब अबू तालिब और हुजूर के सारे चचा और फूफियाँ भी शरीक हुए। खुतबा निकाह का खुतबा जनाब अबू तालिब ने पढ़ा था। वो खुतबा आज भी मौजूद है जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहले निकाह में खुतबा हुआ था। इस खुतबे के बाद निकाह मुकर्रर होने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये शरीक हयात, ये रफ़ीक़ हयात, ये महबूब रब्बुल आलमीन सैयदा खदीजा हुजूर की ऐसी वफा शियार खातून बन कर के रही कि अल्लाह की कसम आज भी पूरी रोए ज़मीन पर जो मेरे आका की औलाद सादात के नाम से जानी जाती हैं वो कहीं और नहीं, वो खदीजा की पेट से पैदा होने वाली औलाद है। हज़रत खदीजा के बतन से मेरे आका की 6 औलाद हुई, 3 बेटे और 3 बेटियां। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 6 औलाद की माँ हज़रत खदीजा है। ये बड़ी उल्फत और मोहब्बत की ज़िंदगी गुजरी है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन जब मेरे आका की उम्र पाक 50 साल की हुई और हज़रत खदीजा की उम्र उस वक्त तकरीबन आप अंदाज़ा कर सकते हैं 25 साल ज़्यादा थी, 75 साल की खातून थी। 75 साल की खातून, अल्लाह अकबर, 75 साल की खातून किसको कहते हैं? उम्र का वो पड़ाव जिसमें बूढ़ा अपने आज़ा से मजबूर हो जाता है और उसके पट्टे जवाब दे जाते हैं, चलना फिरना दुभर हो जाता है। लेकिन कसम खुदा की जब मैं ये रिवायत पढ़ता हूँ कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3000 फीट ऊंची पहाड़ी गारे हिरा में जाकर इबादत करते थे, कभी 2-2 दिन तक नहीं आते थे, तो 75 साल की ये खातून दिन में 2 मरतबा पहाड़ी पर जाती थी खाना लेकर के और उतरती थी। आज मैं बताऊं, हम जैसों की जवानी में 1 मरतबा पहाड़ पर चढ़ करके आ जाएं, 8 दिन तक पट्टे दर्द करते हैं, पैर दर्द करते हैं। मैं समझ नहीं पाता वो खदीजतुल कुबरा की वफा शियारी को दिन में 2 मरतबा अपने नबी पाक अपने रफ़ीक़ हयात के लिए ऊपर जाती थी, नीचे आती थी। कभी रसूलुल्लाह पहाड़ से उतर रहे होते, हज़रत खदीजा घर के बाहर आकर खड़ी होती, कड़ी धूप होती, सूरज की तमाज़त होती, लोग चलते फिरते कहते खदीजा अपने शौहर का इंतजार कर रही हो? कहती हाँ, मेरे शौहर पहाड़ से उतर रहे हैं, गारे हिरा से आ रहे हैं। उस वक्त लोग कहते खदीजा अंदर छांव में बैठो, इंतजार करो, उनके आने में काफी वक्त है। खदीजा कहती मेरा दिल गवारा नहीं करता मेरा शौहर धूप में उतर रहा हो और उनकी औरत छांव में बैठी रहे। जब तक वो धूप में उतरते रहेंगे मैं धूप में खड़ी रहूंगी। ये वफा शियारी ऐसी थी, आपको पता है सबसे पहली वही कुरान की जो गारे हिरा में आई है, जिब्राइल अमीन लेकर के आए हैं। इस्लाम की तारीख में अगर ये ना बताएं तो इब्तिदा ही ना होगी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब 40 साल की उम्र में थे, गारे हिरा में जाकर इबादत करते, जिब्राइल अमीन आए कुरान की आयतें लेकर और हुजूर से कहा इक़रा। हुजूर ने कहा मा अना बिक़ारी, मैं नहीं पढ़ूंगा। वो कहते थे पढ़ो, हुजूर कहते मैं नहीं पढ़ूंगा, सीने से सीना लगाकर दबोचते थे। 3 मरतबा हुआ, 4थी मरतबा कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया है। रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू किया और फिर आयतें सबसे पहले जो आई हैं, इस्लाम की इब्तिदा, नूर इलाही का ज़ुहूर है, नूर इलाही का नुज़ूल है, अल्लाह का कलाम उतर रहा है पहाड़ पर, पहाड़ की चोटियों पर, जिसको आज भी जबल नूर कहा जाता है, नूर की पहाड़ी, जहां नूर उतरा, नूर का पहाड़ है। और किस पर उतरा? जिस पर उतरा वो नूरुन अला नूर है। कुरान की आयतें आई इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें देकर जिब्राइल अमीन चले गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो वही आई थी उसका असर ऐसा था, सख्त ठंडियों के दिन थे, मोटे मोटे पसीने के बूंद पेशानी से निकलते थे। जब रसूल पाक तशरीफ लाए, पहला वाक़या देखा था हुजूर ने, पहला वाक़या था जिब्राइल अमीन इस तरह आयतें लेकर आए। ये आयतें उतरना आसान बात नहीं, कुरान खुद कहता है, मेरा मौला फरमाता है अगर हम ये पहाड़ों पर उतार देते, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, टुकड़े
टुकड़े टुकड़े हो जाते, लेकिन कल्बे मुस्तफ़ा ने इसका बोझ उठा लिया है। रसूलुल्लाह के दिल ने इस अमानत को उठाया था, लेकिन चल करके दुनिया का वो पहला इंसान, दुनिया की वो पहली शख्सियत है जिसको कुरान सुनाया मेरे आका ने, वो कोई और नहीं, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा है। आए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, घर आते ही फरमाया, मेरे पास एक फरिश्ता आया, सीने से सीने लगाया और उसने ये आयतें अल्लाह की तरफ से सुनाई, मुझे कंबल ओढ़ाओ, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, बार बार कहते मुझे कंबल ओढ़ाओ, सख्त ठंडियाँ लग रही हैं। सैयदा खदीजतुल कुबरा की बातें याद रखो, तारीख़ में आज भी लिखी हुई हैं। ढारस बंधाने वाली, तसल्ली देने वाली, हौसला देने वाली खातून हो तो ज़िंदगी कमाल की है। अजीज़ा ने गिरामी कहती हैं, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल, आप यतीमों का बोझ उठाते हैं, आप बेवाओं की मदद करते हैं, आप कमज़ोरों का हाथ पकड़ते हैं, आपके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। ये जो उतरा है वो आपकी भलाई के लिए है। अनकरीब आप देखेंगे ज़मीन और आसमान की सारी चीज़ें अल्लाह ताला आपके लिए मुसख्खर फरमा देगा। ये खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हौसला अफजाइयाँ थी। यहाँ से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर मक्का तशरीफ़ लाए, और आपको पता है सबसे पहले मक्का मुकर्रमा में अब तारीख़ इस्लाम की शुरुआत है। तारीख़ इस्लाम की शुरुआत है। इस्लाम की तारीख़ से पहले मैंने इतना बैकग्राउंड बता दिया, तारीख़ बता दी, हालात बता दिए, सियासी हालात, मजहबी हालात, अखलाकी हालात। अब जो शुरुआत हुई वो कहाँ से? गारे हिरा से शुरुआत हुई। और उसके बाद सबसे पहले घर आए मेरे आका, और सबसे पहला मुसलमान जो इस्लाम में दाखिल होता है वो कोई और नहीं, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, घर वाली सबसे पहले इस्लाम में दाखिल हुई हैं। रिवायतों की तत्बीक के एतबार से अलग अलग मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने बयान किए। सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में सिद्दीक़ अकबर भी हैं, मौलाए कायनात भी हैं, और हज़रत खदीजा भी हैं, हज़रत ज़ैद भी हैं, हज़रत बिलाल भी हैं। सबकी कैटेगरी के हिसाब से उनको अव्वल दर्जे में रखा गया। औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजा, बच्चों में मौलाए कायनात। बहरहाल सबसे पहला जो इस्लाम शुरू हो रहा है वो हज़रत खदीजा ख़ुद के घर से रसूलुल्लाह ने शुरू फरमाया। माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप हज़रात ने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो बयान कर रहे थे बहुत अच्छी तरीक़ा से समाअत फरमा ले, और कितने प्यारे अंदाज में उन्होंने बतलाया कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में उन्होंने बयान किए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में भी बयान फरमाया, और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और ख़ुसूसी प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके बारे में भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बतलाया। तो आप लोगों को हमारे चैनल पे इसी तरीके का वीडियो मिले, आप लोग चाहते हैं कि इस तरीके का वीडियो आप लोगों को मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। और अच्छी तरीके से वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारे कमेंट में जवाब लिखें।